Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 31st July. I am sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves. Stay happy, stay healthy and most importantly stay safe children. As you all are aware that we have started with chapter number 7, which is working with numbers till 50. Okay, till now we have worked with numbers from 1 to 10, then 11 to 20 and now 21 to 50. Okay, so that means कि जो भी हम exercises करेंगे अभी वो सारी exercises हमारी 21 से लेकर के 50 तक पे based होंगी. Fine. So in the previous class, I was telling you about ascending order and descending order. We have started with ascending order or descending order. Ascend and descend दोनों का मैंने मीनिंग बताया था. Ascend means to climb up. Ascend का मतलब होता है ऊपर जाना. ठीक है, जैसे लाइक वी ascend the mountains, पहाड़ों पे लोग चढ़ते हैं, सीढ़ी से ऊपर जाते हैं. ascending the stairs, एयरपोर्ट पे जैसे जब बाय एयर कहीं ट्रैवल करते हो तो एरोप्लेन टेक्स ऑफ, उसको कहते हैं ascend. तो ascend का मतलब है ऊपर जाना एंड descend मीन्स टू कम डाउन. ऊपर जाते हैं तो नीचे भी आएंगे. एरोप्लेन ऊपर जाता है, लैंड भी तो करना है. माउंटेनियस, माउंटेन पे चढ़ते, पहाड़ पे चढ़ते, दे हैव टू descend ऑल्सो, नीचे आना है. हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं तो सीढ़ी से नीचे भी आते हैं. तो ascending का मतलब होता है ऊपर जाना एंड descending मीन्स नीचे आना. ठीक है, ये कल मैंने बताया था इन द प्रीवियस क्लास. आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. सो आई होप कि ascending order एंड descending order का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया. फॉरवर्ड काउंटिंग में यू कैन से कि हम ascending order में जाते हैं. व्हेन वी डू फॉरवर्ड काउंटिंग वी मूव इन ascending order because we move from smaller number to greater number. Suppose you have to write numbers from 28 to 34 in ascending order, in order. ठीक है, तो जब आप उसको 28 से लेकर 34 तक के नंबर्स को जब लिखोगे तो you will have to start from 28 only. उसको अगर आप स्टेप्स पे लिखोगे तो 28, then 29, then 30, then 31. स्टेप बाय स्टेप you will move ahead, है ना, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ोगे. So that is in forward counting we move in ascending order. ठीक है, and in backward counting we move in descending order. क्योंकि backward counting में हम greater to smaller आते हैं. forward counting में we move from smaller to greater. अगर हमें 1 से 20 तक forward counting करनी है तो it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. This is forward counting. And if we have to write the same numbers in backward counting में मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? We will start from 20 onwards. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So that means in forward counting we are moving in ascending order and in backward counting we are moving in descending order. तो ये कल हमने ascending order में देखा कि when we have to arrange the numbers in ascending order we are going up. ठीक है, अभी हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर से हमें नीचे भी आना है. So yesterday we did ascending order. Now today we will first do descending order and then we will be doing greatest or smallest number. Okay, so children turn to page number 76. 76 in old edition and 77 in new edition. जो न्यू एडिशन की बुक्स होंगी दैट इज 77 एंड जो ओल्ड एडिशन की बुक्स है वो है 76. ओके, सो कल हमने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज किया था कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, टुडे वी विल बी डूइंग राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ये कल मैंने बता दिया था कि कमिंग डाउन, गोइंग अप इज असेंडिंग ऑर्डर, कमिंग डाउन इज डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, कमिंग डाउन इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर. नाउ राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अभी हम ये वाली एक्सरसाइज
एक्सरसाइज करेंगे, WRITE, राइट इन DESCENDING, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, and descending order is shown by this down arrow. ठीक है, right in descending order and descending order is shown by this down arrow. जिस ascending order up arrow में show करते हैं, ascending order is indicated by this up arrow, descending order is shown by down arrow. ठीक है, ऐसे down arrow में दिखाते हैं. So now first one is 25 to 21. 25 to 21. First I will write the numbers, then 36 to 31, then 29 to 24, and 33 to 28. Okay, fine. Now let us write the answer. अभी हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो 25 to 21, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 25 से स्टार्ट करके हमें 21 तक आना है. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 25 से स्टार्ट करके हमें 21 तक आना है. ओके, सो 25, दैट मीन्स वी आर मूविंग इन descending order, we are moving backward. So 25 to 21, that is 25, 24, 23, 22 and 21. Fine. 25, 24, 23, 22 and 21. Okay. Then 36 to 31. यहाँ पे हमें 36 to 31, दैट मीन्स वी हैव टू मूव बैकवर्ड. हमें 36 to 31 आना है, दैट मीन्स हमें बैकवर्ड मूव करना है. तो 36, 35, 34, 33, 32 and 31. ठीक है, दिस इज 33 को मैं थोड़ा सा और इस साइड लिख देती हूँ. 34, 33, 32 एंड 31. ठीक है, देन 29 to 24. 29 to 24, so 29, 28, 27, 26, 25, 24. 29 to 24. Okay, and then 33 to 28. So 33 से 28 हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. So starting from 33, 32, 31, 30, 29 and 28. Okay, so this is how we arrange the numbers in descending order. 25 से 21 हमें लिखना है. So you can make out, आप देख के बता सकते हो कि हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं. So 25, 24, 23, 22, 21. Okay, then 36 to 31. So 36, 35, 34, 33, 32 and 31. Okay, then 29 to 24. 29, 28, 27, 26, 25 and 24. Then 33 to 28. 33, 32, 31, 30, 29 and 28. Okay, this is how we have arranged these numbers in descending order. So children, write these. मैं तब तक साइड में आ जा रही हूँ. Write these and after this we will start with greatest number and smallest number. Okay, इसको आप लिखो. Okay children, everyone has written. I am sure everyone has written. ठीक है, इसमें आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में, so there should not be any problem. All the numbers are in proper order. तो
ऐसे नहीं कि कोई नंबर कहीं से कोई नंबर कहीं से, एक प्रॉपर ऑर्डर में नंबर है। 25 to 21 यू नो द स्टार्टिंग नंबर एंड यू नो द एंड नंबर, सारे ऐसे ही हैं। ओके, सो इसको अभी मैं इरेज कर रही हूँ। एंड नाउ चिल्ड्रन कम टू पेज नंबर 77। इन ओल्डर वर्जन इट इज 77 एंड जो न्यू एडिशन है उस पर 78 होगा पेज नंबर। नाउ स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, इसको अभी करके, अभी ये हमने कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर। अभी तो वी हैव रिटन द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नंबर्स आर गिवन फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर, सो वी नो द सीक्वेंस, ठीक है। 33 to 37 और 38 to 30, सो वी नो कि 33 to 37 लिखना है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 33 वी हैव टू कंटिन्यू राइट द नंबर्स टिल 37, और 38 to 30, so we know that starting from 38 we have to write till 30. What if the numbers are not given in proper order? अगर नंबर्स एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दिए हुए हैं, तब हम कैसे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी। नाउ द टॉपिक इज स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, SMALLEST, स्मॉलेस्ट और GREATEST, ग्रेटेस्ट, NUMBER, ठीक है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर। नाउ स्मॉल एंड ग्रेट दोनों का मतलब किससे है? साइज, ठीक है। स्मॉल हम बोले या ग्रेट बोले, बोथ मीन्स साइज, ठीक है। जैसे ग्रेटर हमने पढ़ा था, 33 इज ग्रेटर देन 30, तो ग्रेटर मतलब कि 33 जो है वो 30 से बड़ा है। सो ग्रेटर मैंने बताया था कि ग्रेटर, द वर्ड ग्रेट का मतलब है बड़ा। When we are comparing two numbers, here we are talking about numbers, यहाँ पे हम numbers के बारे में बात कर रहे हैं, greater than या less than, we are talking in context of numbers। यहाँ पे सिर्फ नंबर का साइज देख रहे हैं, ठीक है ना। तो साइज से मतलब यहाँ पे numbers ऐसा तो नहीं कि कोई इतना बड़ा है या इतना छोटा है। साइज means the number which comes before in counting, that is smaller, and जो नंबर बाद में आता है वो नंबर greater है। ओके, so greater is used when we compare two numbers। जब two numbers का हम कंपैरिजन करते हैं, then we use the term greater। ओके, greatest और smallest number, the word is SMALL और GREAT, great, GREATER, greater, और SMALLER, greater or smaller is used when we are comparing two numbers। जब हम two numbers को compare कर रहे हैं, then greater or smaller is used। okay, fine। SMALLEST smallest और GREATEST greatest। smallest और greatest means out of the given numbers which is the smallest, मतलब कौन सा सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन नंबर्स, ये तो हम नहीं कह सकते कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि नंबर्स आर अनलिमिटेड। तो हियर वी आर टॉकिंग कि जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, व्हेन नंबर्स आर गिवन इन अ हाफिजर्ड मैनर, इन द सेंस कि कोई नंबर रैंडमली, मतलब जैसे अगर नंबर्स दिए हैं कि एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर दिया है, कहीं कहीं से लेकर के नंबर्स दिए हैं, बट देयर आर 5 नंबर्स फ्रॉम 21 to 50, ठीक है। तो अभी हमें उन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। वी हैव टू अरेंज दोज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलर वी हैव टू अरेंज द नंबर्स स्मॉलर टू ग्रेटर। तो नाउ व्हाट डू यू नीड टू डू फर्स्ट? सबसे पहले आपको क्या करना होगा? फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड आउट विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर।
सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है और ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। क्लियर? First we will have to find out the smallest and greatest number. So now let us see how do we find the smallest number and how do we find the greatest number. Okay. Now see these numbers. There are the numbers given are 6, 8, 9, 12, 15. ठीक है? 6, 8, 9, 12, 15. ठीक है? These numbers are not in order. ठीक है, ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है कि 6 से 15 तक है, बट इफ यू रीड द नंबर्स यू कैन मेक आउट कि जब हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 सबसे पहले आता है इस काउंटिंग में। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जो है वो सबसे बाद में आता है। इस पूरी काउंटिंग में 6 जो है वो सबसे पहले आता है एंड 15 जो है वो सबसे बाद में आता है। ओके, सो दैट मीन्स जो नंबर सबसे पहले आएगा दैट नंबर इज द स्मॉलेस्ट एंड जो नंबर सबसे बाद में आएगा दैट नंबर इज द बिगेस्ट। ठीक है, दैट नंबर इज द बिगेस्ट। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी कंपेयर नंबर्स को हम जब कंपेयर करते हैं तो कैसे कंपेयर करते हैं, वी फर्स्ट चेक द टेंस प्लेस। टेंस प्लेस को हम चेक करते हैं, जिस नंबर में टेंस प्लेस की डिजिट बड़ी होगी दैट नंबर वुड बी ग्रेटर, बड़ा होगा। जिस नंबर में टेंस प्लेस की डिजिट छोटी होगी दैट नंबर वुड बी स्मॉलर। एंड इफ द डिजिट एट टेंस प्लेस इज सेम, अगर टेंस प्लेस की डिजिट सेम है देन वी मूव टू वंस प्लेस, तब हम वंस प्लेस की डिजिट सेम चेक करते हैं। जिस भी नंबर में वंस प्लेस पे स्मॉलर डिजिट होगी दैट नंबर वुड बी स्मॉलर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, ये तो हमें काउंटिंग में पता है। ठीक है, अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि सिंगल डिजिट नंबर जो है वो 2 डिजिट नंबर से स्मॉल होगा। नाउ देयर आर 3 सिंगल डिजिट नंबर्स। अभी ये 3 सिंगल डिजिट नंबर्स में जो नंबर काउंटिंग में सबसे पहले आएगा दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। बट इफ ऑल द नंबर्स आर 2 डिजिट नंबर्स, इसमें भी हम क्या करते हैं, वी चेक द टेंस प्लेस। ठीक है, जिस नंबर में टेंस प्लेस की डिजिट सबसे स्मॉल होगी दैट नंबर वुड बी द स्मॉलेस्ट, और जिस नंबर में टेंस प्लेस की डिजिट सबसे बड़ी होगी वो नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। सो दीज नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये समझ में आ रहा है, दीज NUMBERS numbers are arranged in ASCENDING. These numbers are arranged in ascending order. ठीक है, you can make out कि ये numbers कैसे arranged है, ascending order, 6 7 8 9 10 6 8 9 12 15. Okay, these numbers are arranged in ascending order. Fine. Now out of these numbers which is the smallest number, smallest number इसमें कौन सा है, and greatest number, smallest number GREATEST, greatest number, smallest number is 6. We can make out that smallest number is 6 and greatest number कौन सा है, greatest number is 50. Okay, so when the numbers are not given in proper order, जब numbers proper order में नहीं दिए रहते तो हम ascending order में कैसे numbers को arrange करते हैं, we start from the smallest number. जितने भी नंबर दिए हुए हैं उसमें जो smallest number है, सबसे छोटा नंबर है, उसे हम सबसे पहले लिखते हैं और जो सबसे बड़ा नंबर है उसे हम सबसे बाद में लिखते हैं। ओके, अभी ये समझ में आया बेटा सबको? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं, दिस इज ऑलरेडी डन इन द बुक, दिस इफ यू विश यू कैन राइट। ठीक है, ये आपकी जो बुक पे यहाँ पे स्टार बना हुआ है, क्लाउड स्टार जो भी आप बोल लो। स्मॉलेस्ट नंबर इज 6 एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज 50। ठीक है,
because these numbers are already arranged in ascending order. Now let us start with the exercise. तो exercise से start करते हैं. First is write the numbers in ascending order. Write the NUMBERS numbers in ASCENDING in ascending order. Again you will see that this up arrow is made. This up arrow means starting from smaller and going towards greatest. Smallest number से start करके हमें greatest number की तरफ जाना है. So this up arrow means ascend, मतलब जैसे मैंने बताया था हम ऊपर जाते हैं. ठीक है, तो smallest से greatest की तरफ जाना मतलब हम ऊपर ही जा रहे हैं. So the numbers are 13, 18, 28, 20 and 17. First I will write the numbers children, okay? Then 25, 21, 29, 13 and 15, okay? And third is 30, 38, 33, 31 and 39. Okay, now let us arrange these numbers in ascending order. ठीक है, now ascending order अब सबको समझ में आ गया होगा कि ascending order means writing the numbers from smallest to greatest. ascending order को हिंदी में कहते हैं बढ़ते हुए क्रम में, और descending order को कहते हैं घटते हुए क्रम में. ठीक है, so ascending order means starting from the smallest number. So now which is the smallest number here? 13, 18, 28, 20, 17. All the numbers have 2 digits. ठीक है, सारे numbers में 2 digit है. तो मैंने क्या बताया था कि when all the numbers have same number of digit, जब सारे numbers में same number of digits होती है तो what do we do? We check the digit at tens place. ठीक है, यहाँ पे हम टेंस प्लेस की डिजिट को चेक करेंगे. एक मिनट बेटा, 33 को मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूँगी, इसमें थोड़ी सी लाइट पड़ रही है. 33, then 31 and 39. Okay, starting from, so first we check the digits at tens place. ठीक है, तो टेंस प्लेस में क्या है? 1 है, 2, 2 and 1. ओके, तो जिन नंबर्स में टेंस प्लेस पे 2 है उस नंबर को तो स्मॉलेस्ट हो नहीं सकते. दीज 3 नंबर्स हैव 1 at tens प्लेस. ठीक है, सेम है, सेम डिजिट. सो वी मूव ऑन टू द वंस प्लेस. अभी वंस प्लेस पे यहाँ पे 3 है, इट इज 8 हियर एंड इट इज 7 हियर. ठीक है, 3, 8 and 7. So 3, 8 and 7, that is 3 ones, 8 ones and 7 ones. So smallest is कौन सा सबसे छोटा होगा? The one with 3 ones. जिस नंबर में 3 ones होंगे मतलब जिसमें सबसे कम ones होंगे, that number is the smallest. So 13 is the smallest number. ठीक है, 13. उसके बाद next क्या आएगा? 17 and then 18. ठीक है, 13, 17 and then 18. Now we are left with 28 and 20. Both the numbers have 2 tens. So let us see ones, 8 ones and 0 ones. Obviously जिसमें 8 ones होंगे that number would be greater. So 20 and 28. ठीक है, so 13, 17, 18, 20, 28. This is the sequence of numbers in ascending order. Okay, now let us move to the next one. 25, 21, 29, 13 and 15. So 25, 21 and 29. These numbers have 2 tens, and 13 and 15. These have 1 10. So
13 एंड 15 110 है, तो ये स्मॉलर होंगे. आउट ऑफ 13 एंड 15 बोथ हैव 110. सो लेट अस सी द डिजिट्स एट वंस प्लेस. 13 में 3 वंस आर देयर एंड इन 15 5 वंस आर देयर. तो जिस नंबर में कम वंस होंगे वो नंबर स्मॉलर होगा. सो 13 and then 15 and then we have 25, 21 and 29. All the three numbers have 2 tens. तीनों में 2 tens है. So we move to the next, that is ones, 5 ones, 1 1 and 9 ones. Which is the greatest? 9 ones. and सबसे छोटा क्या है? इसमें 1 1 होगा. तो 13, 15, then 21, then 25 and 29. Okay, 13, 15, 21, 25 and 29. ठीक. Now the third one, 30, 38, 33, 31 and 39. Now all these numbers have 3 tens. ये सारे numbers में क्या है? 3 tens है. Okay, so all the numbers have 3 tens. So we will see the digit at ones place. 0 ones, 8 ones, then 3 ones, 1 1 and 9 1. तो सबसे smallest क्या है? 0 1. 0 1 means nothing. So first is 0, that is 30. Then 30 के बाद क्या आएगा? Then number with 1 1, that is 31. So 31. Then next one क्या आएगा? 31 के बाद 1 1, then 3 ones. So 33, then 8 ones, that is 38 and 9 ones, that is 39. So 30, 31, 33, 38, 39. Okay, this is the correct order of numbers. 30, 31, 33, 38 and 39. Okay children, so write this in your book and after this we have numbers in descending order. जैसे हमने अभी ascending order में numbers को arrange किया, in the same manner we can arrange the numbers in descending order also. ठीक है. ascending order में हमने numbers को smallest to greatest arrange किया. descending order is just the opposite. descending order में हम greatest to smallest arrange करते हैं. तो यहाँ पे क्या है? 13 is the smallest number and 28 is the greatest number. 13 is the smallest number and 29 is the greatest number. Here 30 is the smallest number and 39 is the greatest number. Okay, so write this in your book children. मैं साइड में आ जा रही. After this we will start with descending order. Of course we will do the exercises in the next class because इतना सारा टाइम नहीं है कि तीनों हमारे एक्सरसाइज हो पाए. I will just explain. डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे मैंने बताया, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर हमने पहले भी अभी किया. इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो वी डिड इट. द ओनली डिफरेंस वाज तब हमने क्या किया कि द नंबर्स वर गिवन इन ऑर्डर. ठीक है, नंबर्स ऑर्डर में थे. हियर द नंबर्स आर नॉट इन ऑर्डर. यहाँ पे नंबर्स ऑर्डर में नहीं है. ठीक है, नंबर्स ऐसे रैंडमली पिक किए हुए हैं. एक नंबर यहाँ से, एक नंबर यहाँ से, एक नंबर यहाँ से, एक नंबर यहाँ से है. ओके, नॉट एक जस्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूँ. सपोज द नंबर्स आर 35. दिस इज नॉट देयर इन योर बुक, जस्ट ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए ले रही हूँ. 35, 29, 19, 19, then 38, 23. Now suppose you have to arrange these. ठीक है, तो जैसे ये रैंडमली पिक किए हुए नंबर है. एक इधर से लिया, एक इधर से लिया, एक इधर से लिया. इसको जब हम करेंगे सो 35 3 tens, 29 2 tens, 19 1 10, 38 3 tens and 23 2 tens. So only 19 has 1 10. तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 19 आएगा. Now tell me children, next number कौन सा होगा? 19 के बाद next would be, yes, very good, 23.
After 23, right, 29. Then 35 and 38. Yes, very good children. 35 and 38. Okay. So this is how we arrange the numbers in ascending order. Now children, descending order we will do in the next class, and after that we have worksheet number 8. Okay, which is based on this chapter. So today I will stop here children. Thank you so much and have a good day. मैं साइड में हो जा रही हूँ. You can take a screenshot and then you can complete your work. इसका आप एक screenshot ले सकते हो और अपना work complete कर सकते हो. Okay? मैं इधर साइड में हूँ. I hope this much time is sufficient to take a screenshot. इतनी देर में तो सब screenshot ले लोगे. Okay children? So that is all for the day. Thank you and have a nice day.